morning, students. My name is Manish, and today I am going to give you introduction on computer. That is the topic covered in ninth class chapter 1. So as you all know, computer are multi-purpose machines. So we cannot confine computer to simply laptop or desktop. हम केवल desktop और laptop को ही computer नहीं बोलते हैं. कंप्यूटर हर तरह से हर फॉर्म में है, जैसे कि एटीएम मशीन, आपका इवन वॉशिंग, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और आपका मोबाइल, ये सब कंप्यूटर में ही आते हैं. वी कैन डू ए वैरायटी ऑफ जॉब यूजिंग दिस. फॉर एग्जांपल, योर स्मार्टफोन. You can talk to your friend and relatives. You can do calculation using calculator app. You can listen music and video. And at present you are watching educational video. आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जोमेटो से फूड, स्विगी से फूड ऑर्डर कर सकते हैं. तो द नंबर्स आर एंडलेस. हियर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट्स ऑपरेशन पार्ट. दैट इज, हम उसका ऑपरेशन पार्ट नहीं स्टडी कर रहे हैं. हियर वी विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ इट वर्क्स, वो काम कैसे करता है. We all know computer do the computation fast, that is very fast compared to us. So हमारे से उसका computation speed बहुत ज़्यादा तेज है. But it doesn't do it by itself. लेकिन वो खुद अपने आप नहीं करता है. We have to tell him what to be done and also how to be done. हमें उसे बताना पड़ता है कैसे करना है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, एज इफ यू वांट ए वर्क टू बी डन बाय ए वेरी स्मॉल किड. अगर आपको किसी एक बहुत छोटे बच्चे से काम कराना है, तो जिसे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे. आप अगर उसको केवल बोलेंगे जाके मेरे लिए पानी ले आओ, तो वो पता नहीं कहाँ से पानी ले आएगा. तो आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, फिर वहाँ किचन आएगा, किचन में वाटर बोतल टेबल पे रखी हुई है, वहाँ से आपको वाटर बोतल लेना है और पानी इसमें डालना है, फिर वापस वैसे ही करके आना है. तो सेम वे वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, ए वेरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर so that it will work according to us. If we see the simple print command binary code, it goes in 100 lines. So हमें लगता है इतना सिंपल है, बट ये वेरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं. इवन जो बाइनरी कोड में इंस्ट्रक्शन होता है 0-1, जो कि कंप्यूटर ही केवल समझ सकता है, तो वो भी 100 ऑफ लाइन्स है. सिंपल एक कमांड भी वो 100 लाइन्स में, क्योंकि उसमें बहुत वेरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए गया. The reason is computer doesn't understand our language and it has to be given a very detailed instruction. Okay, now I'm going to share my laptop screen for a presentation. One second. Okay, here it is. Simple model of a computer. There is 3 part: input unit, memory and central processing unit, that is called CPU, and output unit. So a simple model of a computer, it is categorized in 3 parts. Now next, so we will discuss the input unit. Input unit provides a facility to enter data and instruction into the computer. So there should be some methodology by which we give instruction to computer. So they are the device like keyboard, touch screen, mouse, joystick, barcode reader, USB device, fingerprint scanner, etc. These input devices help us to give data instructions to computer. So
ये सब डिवाइस से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं. नाउ next part is memory and CPU. So memory and CPU are used by computer to process the data to give the desired result. For example, if you use mobile with fingerprint scanner and you touch the scanner, that is, you are giving a input to the computer. Here it is mobile. A memory where your finger data is already stored is used to verify the input data by CPU. And if it matches with the input data, your smartphone unlocks for you. यानी कि हम जो फिंगरप्रिंट से उसको टच करते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अंदर, सो दैट कि वो इंस्ट्रक्शंस को या वो डाटा को कंप्यूटर मैच करता है उसके अंदर के मेमोरी के डाटा से कि वेदर दे बोथ आर मैचिंग, और अगर वो मैच करते हैं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है. नेक्स्ट, मेमोरी. बेसिकली वी कैन क्लासिफाई मेमोरी इन 2 पार्ट्स. हम मेमोरी को 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड पार्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. फर्दर जो प्राइमरी मेमोरी है कैन बी क्लासिफाइड एज रजिस्टर मेमोरी, कैच मेमोरी एंड रैम मेमोरी. सो प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये वैसे ही है. रजिस्टर मेमोरी को सबसे पहले एक्सेस होता है, देन कैच मेमोरी, देन रैम. प्राइमरी मेमोरी आर वोलेटाइल इन नेचर. दैट इज कि लाइट या पावर सप्लाई जाने पे इसकी मेमोरी में जो स्टोर डाटा है वो रहता नहीं है, वो चला जाता है, और ये वेरी कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory. The secondary memory is non-volatile, slow and less expensive, and large in capacity. That is, you can store n number of things in the secondary memory. For example, hard disk, DVD, CD, USB, memory card, extra. Okay, next. So now comes CPU. CPU is central processing unit, which can be further split in ALU and control unit. So ALU does the actual computing job. It is doing the actual computing job. And what CU does? CU, that is control unit, assists the ALU in controlling the memory bit traffic to in and out of ALU to its current location. So it is doing the job, but जो मेमोरी बिट्स हैं या बाइट्स हैं जिसमें आपके इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन स्टोर है, उनको सीक्वेंस में और तरीके से सही जगह पर रखना और सही जगह पे इन आउट करना, यानी कि उसको एलयू में डालना और वापस मेमोरी में रखना, तो इसको कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल यूनिट करता है. नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सीपीयू आर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर, Helio processor. Okay. Next, then come output unit. Output unit are those from where we get output from computer with respect to the input we have provided. Example of output device are mobile screen, printer, earphone, sound system, computer monitor. These are the output unit. Okay, next. So why we use computer? Characteristics and advantage of computer. So there should be some advantage in using computer. That's why we are using computer in our day-to-day life. We all have come across the usability of computer in our daily life. See, as in COVID-19 pandemic, we are using computer in a much rigorous way. COVID-19 has a very less impact on the sector where application of computer is maximum. For example, आप देखेंगे कि जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, वहाँ पे सब अपने घर से ही आराम से काम कर पा रहे हैं. उनको एक लैपटॉप चाहिए और नेट कनेक्शन चाहिए, तो वो घर से ही अपने ऑफिस के लिए जॉब कर पा रहे हैं. तो दे आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय दिस पेंडेमिक. No doubt they are all affected, but from job side they are very less affected.
Okay, next. Computer has mainly following characteristics. So it has following characteristics, that is automation, accuracy, long-term storage, consistency, and programmability. So these are the main characteristics actually. It has many characteristics, but these are the main characteristics. Okay, next. Computer can automatically perform a given task. So that is, we program the system in such a way that it automatically function in a desired given way. हमें उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, तब जैसा हम चाहते हैं वैसा वो ऑटोमेटिक काम करता है. जैसे एटीएम मशीन, आपके जो मोबाइल पे रिमाइंडर आता है डाटा एक्सपायरी से पहले, वो भी ऑटोमेटिक होता है, उसको कोई मैनुअली आपके पास एसएमएस नहीं भेजता है. वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक है, वो कब कब पानी लेना है, कैसे लेना है, वो सब ऑटोमेटिक करता है. मेनी ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, कई सारी फैक्ट्रीज हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ना के बराबर है और वो सारा ऑटोमेटिक करती है. तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है. ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. Computers are machine and have higher accuracy if we are properly designed, if they are properly designed by us. Normally, they are machine and they don't commit any mistakes. Sometimes we say कि okay, कंप्यूटर ने ये गलती कर दिया, but actually होता क्या है कि हमने ही उसे ढंग से प्रोग्राम नहीं किया होता है. हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में कहीं लैब्स रहते हैं जिसके कारण वो गलती करता है. So we all know that time to time we update our app from Play Store. हम अपने Play Store में देखते हैं कि ऐप को हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है. द मेन रीजन क्या होता है कि ऐप जो भी होते हैं वो क्रैश रिपोर्ट, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके डाटा वो कलेक्ट करते हैं अपने सर्वर पे और फिर वो चेक करते हैं कि वो गलती क्यों हुई. तो जब गलती का उन्हें रीजन पता लगता है तो फिर उसको अपनी प्रोग्रामिंग में वो करेक्ट करते हैं और फिर अपडेट वर्जन निकालते हैं और प्ले स्टोर में पब्लिश करते हैं और फ्रॉम देयर वी अपडेट आवर ऐप. ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूजेस. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो जो भी डाटा है, इवन जो अभी मैं वीडियो भेजूंगा, ये भी आपके पास जब तक आप चाहें तब तक रख सकते हैं, जब तक आप डिलीट ना करें, या इसको कई दूसरे जगह पे बैकअप के रूप में भी आप स्टोर कर सकते हैं और जब आपको जरूरत होगी आप दोबारा इसे देख भी सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नेक्स्ट, एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क. सो हमें कोई टास्क अगर बोला जाए तो हम फर्स्ट, टू या थर्ड या फोर्थ टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेंगे. देन उसके बाद अगर वो सेम रिपीटेटिव टास्क है तो हम बोर हो जाते हैं और फिर आगे के जो टास्क होते हैं अगर सेम नेचर का है तो हम उसे थोड़ा सा, हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है, ये ज़्यादा ही लो हो जाती है. बट दिस इज नॉट द केस विद कंप्यूटर. दे कैन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क इन कंसिस्टेंट मैनर. They do not possess human-oriented limitations such as loss of interest, liking, and physical capacity. So जैसा उन्होंने फर्स्ट टाइम में परफॉर्म किया है वैसे ही वो लास्ट टाइम में भी परफॉर्म करेंगे. क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, programmability. We can write program for computer as per our need. तो हम जो भी होगा वो हम अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से, कंप्यूटर को अपने तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं. और उसको हम कितने भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फर्दर दिस वंस रिटन कोड कैन बी रीडिजाइन फर्दर एज पर आवर नीड. सपोज हमने कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, अब उसमें थोड़ा सा और हमें इम्प्रोवाइज करना है तो हम थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके उसको फर्दर यूज ले सकते हैं. मतलब वो रीयूज बार बार होता रहता है. ओके, नेक्स्ट इज हार्डवेयर. Hardware in computer are all the hard entities such as mouse, keyboard, CPU, memory, monitor, printer. जो भी हम उसका हार्ड पार्ट देख रहे हैं कंप्यूटर का, या तो वो हार्डवेयर में काउंट होता है. दे आर द फिजिकल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर. Computer is a multi-purpose machine and it cannot perform any task on its own.
तो अपने आप को कोई कभी काम नहीं कर सकता. टू मेक इट यूजेबल, a set of instruction is written and executed. These set of instruction, they are logical instruction and they are called software. So कंप्यूटर का जो हार्डवेयर हमने बताया वो अपने आप काम नहीं कर सकता. उसको काम करने के लिए हमें एक लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है. तो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट, firmware. Software instruction many times come integrated along with hardware. So since such a software is closely coupled with hardware, it is known as firmware. Example instruction in washing machine, traffic light, microwave oven, extra. तो ये कंपनी फिटेड ही ये सॉफ्टवेयर आती है हार्डवेयर के साथ. आपने देखा होगा अपने मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप होंगे जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते. वो आपके मोबाइल के साथ ही जब आपके पास मिलता है और उनको हम फर्मवेयर कहते हैं. समटाइम दे आर वेरी यूजफुल, समटाइम दे आर नॉट. सो नॉर्मली ये कपल्ड रहते हैं हमारे हार्डवेयर से. तो अगर गलती से हमने इन्हें डिलीट कर दिया तो हमारा जो मोबाइल है या कोई भी हार्डवेयर अप्लायंस है वो काम नहीं करेगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट. So here we come to the end of our presentation. Now I stop sharing my screen. Okay. Okay. Here we come. I hope I have covered all the parts given in chapter 1. Still, if you have any questions regarding this, feel free to WhatsApp me. I will try my best to reply your query. Okay, now thank you and have a good day. Bye.